आई होप आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनोगे। फिजिक्स को जिस बारीकी से सर बताने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी वेरी प्राउड दैट सर ने हमें समय दिया एंड वो आप अपना एकदम इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बना करके आपके सामने आए हैं। तो अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसको अच्छे से सुने, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें और हमारा टारगेट ये हो कि मिनिमम समय देते हुए भी हम कितनी अच्छी तरह से एक अच्छा स्कोर इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स हम स्कोर कर सकते हैं। यू मे प्रोसीड एंड थैंक्स वंस अगेन फॉर गिविंग देयर वैल्यूएबल टाइम सर। Yes, sir. Thank you so much for all the Thank you. praising words. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. You may continue. Thank you, sir. So, आज का जो मेरा presentation होगा, there will be some uniform tricks which is applicable for all the students. But there will be some tips जो आपको आपके convenience से accept करना है. Okay, make it very clear. I won't force you to do in a particular way. I will be giving you guidelines. So जो guidelines दिया जाएगा, please take care of those guidelines. It may be possible. I tell you a simple example of what I am trying to address. For example, numericals. Board exam में numericals है. तो इसका जो approach होगा, वो दो students, एक जो entrance based है और एक जो plain batches है. Entrance batches कहते हैं कि numericals are very easy to appear in the board exam. Whereas plain batches का review होता है कि numericals are difficult to attempt. So this is what I'm trying to address. That some guidelines, I'll be specifying those, are not uniformly applied, that depend on your preparation level, which course you have selected and how you have practiced so far, because this is the last minute revision, so we cannot change entire methodology of our preparation. Clear? So I again repeat the same, some instruction that you're going to adopt according to your preparation level. Clear? So let's get started. So on the first level, there are few things which are known to you. Now try to understand, knowing the things and analyzing them properly, ये दोनों में difference है. जैसे for example, ये जो आपका score card है हर एक chapter का, वो आपने right from the start से देखा है, that every chapter has given some weightage, some marks with option and all. अब उसे analyze कैसे किया है आपने? Because इसके बाद भी कुछ frequent questions आते हैं. For example, sir numericals किस chapter में से आएगा? तो अगर आप ये distribution of marks को notice कर पा रहे हो, so every chapter is minimum 4 marks. 4 to 5 marks is the average distribution. So that means if you see carefully previous board papers and all, that every chapter there are formula and there will be numericals possible, which can be 1 mark, 2 mark and 3 mark. So when you're preparing a particular chapter, it is not like कि ये chapter आप numerical के लिए prepare कर रहे हो और ये आप theory के लिए prepare कर रहे हो. Nothing like that. You have to prepare it entirely. For example, if I take example of rotational dynamics, बच्चों 5 marks का chapter है. That means your aim is to prepare rotational dynamics of its theory, of its numericals and entire part. But there will be certain shortcuts जो मैं अभी address करने वाला हूँ, ठीक है? So this is the primary data जो आपको properly analyze करना है. Second one, I guess आपके पास ये आ चुका होगा, reduction in the syllabus. It is just a formality that I have to address you because it may be possible that some students are not received it. So ये सबसे important part है, reduction in the syllabus, not part of the board evaluation for the fresh students. So ये पूरा list आपको already हमने provide भी किया है. Classes ने आपको digest में से भी numericals question mark करके दिया था. This is all usual part. So if you need a copy of it, you can still get it because this is most important. Now we begin. Clear? What are the tricks, tips, and how to make it more and more about the board examination? कैसे ज़्यादा से ज़्यादा marks score कर सकते हैं? Clear? So for that, the first one, यह एक sample board paper है बच्चों. So इस sample paper में you can see some instructions are given and guidelines are given about the questions. So ये एक just a formality है. And now this is important. अब हमारा एनालाइज करना स्टार्ट हो जाएगा. थिंग्स आर नोन टू यू. एनालाइज कैसे कर सकते हो? क्वेश्चन 1 पैटर्न इज वेरी क्लियर टू ऑल. आपने बहुत बार देखा भी होगा, कुछ बच्चे ने अटेम्प्ट भी किया है प्रीलिम्स को, तो ये पैटर्न आपको पता है. तो इसमें से थ्योरी एंड न्यूमेरिकल के नंबर ठीक से देख लो, बिकॉज आज हम इसे एनालाइज करने वाले अपने बेनिफिट के लिए. और वो बेनिफिट कैसे आएगा? आई जस्ट शो इट टू यू. हमारा सेशन दो टाइप में चलेगा. फर्स्ट प्रिपरेशन लेवल एंड सेकंड अपीयरिंग द एग्जामिनेशन. तो दो पार्ट है, बिफोर द एग्जाम एंड एट द टाइम ऑफ एग्जाम. क्या इंप्रोवाइज कर सकते हो? मैंने कुछ क्वेश्चंस फॉर्म किया है
So try to keep answer with you only, because इसके answers relative है, student to student vary करेंगे, but we will try to follow uniformity जो overall view होगा. So you can see the questions. Which section of paper is difficult to attempt? इसलिए मैंने आपको वो sections ABCD को display किया था. कौन सा section difficult होता है attempt करने के लिए? Exam की बात हो रही है. Clear? आपने chapter wise test भी दिया होगा, उसमें भी हमने same pattern follow किया था. Which section of paper is lengthy to answer? Attempt हो रहा है, but वो lengthy होता है. And the last one is which section of paper you lose marks? तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको कलेक्ट करने हैं, आपके पास रखने हैं, फिर हम उसका सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. क्लियर? 3 क्वेश्चंस. इट्स ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर. कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट है, कौन सा सेक्शन लेंथी होता है, एंड किस सेक्शन में इवन आफ्टर अटेम्प्टिंग आप मैक्सिमम मार्क्स लूज करते हो. ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें इंप्रोवाइज करेंगे. चेक द नेक्स्ट वन. Now this was about the exam. Now this is about which type of questions are difficult to prepare. When you are preparing a particular chapter, मैंने उसमें कुछ bifurcations डाले, ये आपको नोटिस करना है. हर चैप्टर में ये पार्ट होता है. Example, definition and statements of laws. You must have seen. I don't have to give you any example कि किस चैप्टर में ऐसा questions है. Every chapter you must have noticed. Diagrams are there, distinguished questions are there. Then there will be a theorem and proofs होते हैं. डेरिवेशंस ऑफ फॉर्मूला होते हैं, देन लास्ट में सिर्फ फॉर्मूला है, और लास्ट में न्यूमेरिकल्स होते हैं. सो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम इन एग्जाम. ओके, अब अगेन सेम, आपको इसमें से अपना डेटा एनालाइज करना है, बिकॉज इसके बाद जो मैं सॉल्यूशंस दूंगा तो फिर एज पर योर आंसर आपको वो सॉल्यूशन ग्रास्प करने हैं, बिकॉज इट मे नॉट बी पॉसिबल, सबके प्रॉब्लम सेम होंगे. So you make a note of it where exactly you are facing a problem. इसलिए मैंने पूरा bifurcation दिया है, because it is not chapter based. Overall physics में जब questions prepare कर रहे हो, question answer कर रहे हो, तो कहाँ पे सबसे ज्यादा problem face हो रहा है, ये आपको यहाँ पे click होना चाहिए. So just make a note of it. I have bifurcated definition and statement of laws. Definitions of any physical quantity हो सकता है, या किसी number of laws are there in section 1 also, section 2 also. सेकेंड वन इज अ डायग्राम. डिस्टिंग्विश बेस्ड होता है, बहुत सारे चैप्टर्स में डिस्टिंग्विश भी बहुत सारा टर्म्स है. एग्जांपल के तौर पे इफ यू टेक रोटेशनल डायनामिक्स है, उसमें डिस्टिंग्विश है. थ्योरम एंड प्रूफ्स होते हैं. रेडिएशन है, केटीजी है, उसमें भी बहुत सारे थ्योरम्स है. डेरिवेशंस ऑफ फॉर्मूला, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन यू दिस. ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर यू हैव डेरिवेशंस ऑफ फॉर्मूला. क्लियर? इसमें सिर्फ एक हिंट दूंगा, डेरिवेशंस 2 टाइप के होते हैं, मैं अगेन एड्रेस करने वाला हूं. अगर सिलेबस में नोटिस किया होगा कि जब बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशंस आता है वो 2 टाइप का है. 1 2 मार्क which is a short one, and other are 3 and 4 mark which are the longer one. तो डेरिवेशंस को भी समझने का कोशिश करो. Don't take all derivations together. There will be some short, there will be some long. तो आपको डिस्टिंग्विश आना चाहिए. And then obviously formula, and the last one is the numericals based question. Now, after this, similar question. Which type of questions are difficult to answer in exam? आपने प्रिपरेशन तो कर लिया, पर जब एग्जाम में आंसर कर रहे हो तो उसमें से आपको रिव्यू क्या मिल रहा है, कि जैसे डेफिनेशन स्टेटमेंट आपने पढ़ तो लिया था, लेकिन जब आपने अटेम्प्ट किया तो आपको क्या रिव्यू मिला. तो अगेन मैंने कुछ लिस्ट किया है. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, डिस्टिंग्विश बेस्ड क्वेश्चंस है, थ्योरम एंड प्रूफ होते हैं, derivations of formula and numericals. So these are 3 set of questions जो मैंने आपको दिए हैं, जिसमें से आपको अभी अपने आंसर्स ढूंढने हैं. वो कैसे? अगर आप अपना डेटा देखोगे, which I can see from the chat itself, that एक रिव्यू आता है सबसे पहला, और वो है this is the one. I hope you remember. It's derivations. Most of the student जहां पे भी फिजिक्स का प्रिपरेशन आता है, दे ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ द डेरिवेशन. अब इसमें 2 कैटेगरी है. जो एंट्रेंस के स्टूडेंट्स है, दे ऑलवेज वर्क ऑन अ शॉर्टकट, सो उनका प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम रहता है. मोस्ट ऑफ देम, बेसिकली नॉट ऑल ऑफ देम, बिकॉज दे ऑलवेज वर्क ऑन अ शॉर्टकट बेसिस. तो स्टेप्स तो वो फॉलो करते नहीं है, विच इज नीड ऑफ द एंट्रेंस एग्जाम. एंड प्लेन बैचेस में मैथमेटिकल प्रैक्टिस कम होने की वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डेरिवेशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं. तो इन तीनों क्वेश्चन जो मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे एक चीज यूनिफॉर्मली आ रहा है, डेरिवेशंस.
Very few students will say definition or diagram is the problem, distinguish is the problem. But फर्स्ट लेवल पे आता है वो है डेरिवेशन, और जो सेकेंड लेवल पे आता है वो है न्यूमेरिकल्स. दीज आर टू विच आर हाईलाइटेड इन ऑल द थ्री. क्लियर? डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स. एंड इनमें मेजर रोल प्ले किया है बोर्ड एग्जाम का मार्क्स कम करने के लिए. अब वो वैलिड है, इनवैलिड है, लेट्स डू इट अगेन. डेरिवेशंस का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो डेरिवेशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन. ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट एंड एनालाइज. जो गाइडलाइंस दे रहा हूं उससे इंडिविजुअल लेवल पे फॉलो करो. ठीक है. फर्स्ट वन, डेरिवेशंस बच्चों दो टाइप के होते हैं, मैंने अभी एड्रेस किया था. एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग है. सो प्लीज अंडरस्टैंड इट, चैप्टर वाइज समझो कि 99% स्टूडेंट डोंट हैव अ प्रॉब्लम फॉर अ शॉर्ट डेरिवेशन, दे हैव अ प्रॉब्लम विद द लॉन्ग डेरिवेशन. उसका रीजन के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया. रोटेशनल डायनामिक्स, सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने. मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ कर्व हॉरिजॉन्टल रोड. इफ यू सी दिस डेरिवेशन देयर आर ओनली 3 स्टेप्स. सिर्फ 3 स्टेप है इसमें. वेयर एज उसी चैप्टर में इसी टॉपिक से रिलेटेड और एक डेरिवेशन है, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड. अब इस डेरिवेशन में डायग्राम इज देयर and there are at least 7 to 8 mathematical steps are there. So that means जब ये स्टूडेंट रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ रहा है वो ये शॉर्ट डेरिवेशन तो कर लेता है, लेकिन ये जो लॉन्ग डेरिवेशन है, सबसे पहला प्रिपरेशन इज द प्रॉब्लम. इवन प्रिपेयर कर भी लिया तो भी एग्जाम में जब उसे लिखना है तो डायग्राम, मैथमेटिकल स्टेप, समवेयर और द अदर मिस्टेक्स का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होता है. That means this is a long derivation which is creating a problem to the students. Next one, जब किसी चैप्टर को आप प्रिपेयर कर रहे हो, इसे अभी नोटिस करना, अब तक शायद आपने किया भी नहीं होगा. When you prepare a chapter, उस चैप्टर में जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए, सबसे ज्यादा टाइम कहाँ एंगेज होता है? You prepare rotational dynamics, you prepare electrostatics, any chapter. I'm purposely taking a chapter जिसमें derivations है. तो इसे इंट्रोस्पेक्ट करो एक बार कि अगर आप चैप्टर को प्रिपेयर करने जा रहे हो, उसे एग्जाम के लिए रिवाइज कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा टाइम कहाँ कंज्यूम किया जा रहा है, और फिर आपको उसका भी एक आंसर मिलेगा. वो अगेन एक ही कल्प्रिट है एंड वो है लॉन्ग डेरिवेशन. एग्जांपल देता हूं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. यू मस्ट हैव सीन देयर इज अ डेरिवेशन फॉर अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस. अब डेमो देखो क्या होता है. बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही वो चैप्टर स्टार्ट होता है तो वो डेरिवेशन देखने के बाद और उसे पढ़ने की कोशिश करने के बाद रिमेनिंग चैप्टर को छोड़ ही देते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू है, बिकॉज वो डेरिवेशन इतना लेंथी है. इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे बच्चे कर भी लेते हैं, बट वो इतना लेंथी हो जाता है कि स्टूडेंट से बाप रे सर इतना सब कैसे पढ़ा जाए. दैट मीन्स अगेन द सेम रिव्यू. वो एक डेरिवेशन की वजह से आपने अपना जो केटीजी का रिमेनिंग सिंपल पार्ट है उसे कॉम्प्लिकेट बना दिया. So again a problem. So long derivation का मैंने कुछ ड्रॉबैक्स बताया. सबसे पहला ड्रॉबैक, they are long so it is difficult to prepare. Second one, जब वो difficult to prepare है तो मैक्सिमम टाइम उसी में चला जाता है, तो उसकी वजह से जो डेफिनेशंस है, फॉर्मूला है, वो ओवरलुक होता है चैप्टर में. थर्ड, when you appear for the exam, ये जितने भी लॉन्ग डेरिवेशंस है उनको जब अटेम्प्ट करने जाते हो तो उसमें डायग्राम बेस्ड होता है, मैथमेटिक्स होता है, कुछ रिप्लेसमेंट होता है, बहुत सारा मिस्टेक का चांसेस रहता है, और फिर उसमें टाइम कंजम्पशन भी ज्यादा लगता है बिकॉज सोच के सॉल्व करके, और लेंथी पार्ट है. सो ये सारा हो गया लॉन्ग डेरिवेशन का. जिसका केटीजी का एग्जांपल देखो, मैंने 2 लिस्ट किया है कि आरएमएस वेलोसिटी का एक डेरिवेशन है बच्चों. आरएमएस वेलोसिटी बहुत ही सिंपल टर्म है, 3 स्टेप में आता है. लेकिन वही प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, ये भी एक डेरिवेशन है, और वो 3 नहीं, कम से कम मिनिमम भी किया तो भी 14 to 15 स्टेप्स में आता है. तो स्टूडेंट विल सी कि अगर मैं आरएमएस का डेरिवेशन पढ़ने को दिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पीसफुली फटाक से हो जाएगा. लेकिन वही स्टूडेंट प्रेशर डेरिवेशन करने बैठता है तो स्ट्रगल करता है. मोस्ट ऑफ देम, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉट एवरी वन ऑफ देम. क्लियर? सो क्वेश्चन कम्स, लॉन्ग डेरिवेशन अगर हम नहीं पढ़ते हैं, हम एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करते हैं, व्हाट विल हैपन? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि जो पार्ट मुझे सबसे डिफिकल्ट लग रहा है,
जिसमें मेरा मार्क्स नहीं आ पा रहा है, तो अगर वो पार्ट मैं स्किप करता हूं, ये तो नॉर्मल थिंकिंग है, सो व्हाट विल हैपन टू द स्कोर इन माय बोर्ड एग्जाम? तो आई हैव गिवन यू द एनालाइजेशन ऑफ सेम. लुक एट द सेक्शंस. सेक्शन ए बी सी डी, ये आपको पता है, फॉर्मेट आपको पता है. जस्ट लुक एट द टाइप ऑफ क्वेश्चन. सेक्शन ए में बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस, and there are very short answer, 8 questions. So it is very clear, इसमें long derivation आने का chance ही नहीं है. That means you can see 10 marks of the MCQs, 8 marks of that particular very short answer. I hope it is sorted. Section B में आएंगे. Section B का distribution of marks आपको पता है. Each question has 2 marks. That means yes. चलो, let's continue. So we are into the analyzing the very long answer questions. Okay, check. We are done the first one, section A. So you can see that section A, it is impossible to have these long derivations. Section B, again same, it is impossible to have long derivation. I use the word long derivation, which is our problem. Clear? Because long derivation के जो 10 to 12 steps की हमने बात की, diagrams की बात की, तो उसमें 2 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन फिट ही नहीं हो सकता. शॉर्ट डेरिवेशन हो सकते हैं. मैंने आपको एग्जांपल दिया था. व्हीकल ऑन अ बैंक रोड कैन नॉट बी आस्क्ड इन अ सेक्शन नंबर बी, लेकिन व्हीकल मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड व्हिच हैज ओनली 3 स्टेप ऑफ डेरिवेशन कैन बी इजीली आस्क्ड. इलेक्ट्रोस्टैट्स का बात किया. डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आई होप यू मस्ट हैव सीन दैट, कैन नॉट बी आस्क्ड इन सेशन नंबर बी. लेकिन इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल का रिलेशन है जो 3 स्टेप का है, वो पूछा जा सकता है. सो दैट मींस अगेन सेम, सेशन बी भी हमारा रिलीज हो गया. 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हो विदाउट प्रिपेयरिंग अटेम्प्टिंग लॉन्ग डेरिवेशंस. गो फॉर इट. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द लॉन्ग डेरिवेशंस, जिसको हमने कैटेगराइज किया है शॉर्ट एंड लॉन्ग में. एंड वी वर डिस्कसिंग, अगर ये लॉन्ग डेरिवेशन जो हमें फिजिक्स के स्कोर करने में बहुत डिफिकल्टी लाते हैं, अगर हम उसे नहीं करते तो what will happen to our score? And almost we are concluded with that. And check, मैंने कुछ distribution of marks यहाँ पे दिया है. You can clearly see that. So you can clearly see that first one, section A, no problem with the long derivations. बच्चों section B में there is no problem with the long derivations. मैंने आपको examples भी दिया है. And now there is a something about section number C. Now understand the pattern बच्चों. सेक्शन सी में 7 थ्योरी क्वेश्चंस एंड 5 न्यूमेरिकल्स आर देयर. क्लियर? तो 7 थ्योरी क्वेश्चन में से ऑल 7 कैन नॉट बी लॉन्ग डेरिवेशन. सेक्शन सी में लॉन्ग डेरिवेशन होते हैं, हो सकते हैं, बट बच्चों 7 के 7 नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू द पैटर्न व्हिच इज गिवन, बिकॉज वहां पे लिमिटेशन है ऑफ द डेरिवेशंस. ओके, जो पैटर्न में मेंशन किया है. तो सेक्शन सी जो दिया बच्चों, उसमें ऑल 7 कैन नॉट बी डेरिवेशन. मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 डेरिवेशंस हो सकते हैं. दैट मींस फिर भी वहां पे 2 क्वेश्चन कम से कम, मिनिमम 2 से भी ज्यादा भी हो सकते हैं. आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ इट. सो 2 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो डेरिवेशन बेस्ड नहीं है, लॉन्ग डेरिवेशन नहीं है. तो अगर हम उस 2 क्वेश्चन को भी पकड़ते हैं तो हम 8 में से 7 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, 5 न्यूमेरिकल्स एंड 2 फ्रॉम द other than the long derivation. तो यहां पे अपना मार्क्स थोड़ा सा कम हो गया, एक क्वेश्चन हमारा कम हो गया, बिकॉज 8 अटेम्प्ट करना था, बट वी कुड अटेम्प्ट ओनली 7 क्वेश्चंस. लास्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर है, बट उसमें एक बेनिफिट मिला है. लॉन्ग आंसर के बच्चों 5 क्वेश्चंस है, बट 5 क्वेश्चंस में से 2 ही क्वेश्चन 4 मार्क्स के है. रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चंस है वो 2+2 का कंपल्शन है. 2+2 में 2 theory and 2 numerical. So again it is like a section B, that long derivation is not possible in those 3 questions having a splitting of 2+2. So that means वहां पे 12 marks हमारे easy हो जाएंगे. So अगर आप ये पूरा इंट्रोस्पेक्ट करके अभी नंबर देखोगे, जो हमारा टोटल आएगा which is 67 marks out of 70 without attempting a long derivation. So here goes the question mark now, कि एक भी long derivation attempt नहीं किया तो भी 67 marks का पेपर attempt किया जा सकता है out of 70. So there is a question, why to prepare long derivations? Pressure exerted by gas, क्यों पढ़ना है?
डेरिवेशन क्यों चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इफ यू ओपन द बुक एंड यू विल सी द कंटेंट, 2 पेज का चैप्टर है विदाउट लॉन्ग डेरिवेशन, 2 पेज का बस, डेफिनेशन है और कुछ शॉर्ट फॉर्मूला है। लेकिन अगर उसके डेरिवेशंस को इंक्लूड करोगे, बहुत सारे बच्चे उसे ऑप्शन में डाल देते हैं। आई होप इट इज एक्सेप्टेड फॉर सो मेनी इन दिस सेशन ऑल्सो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ऑसिलेशंस है, ऑसिलेशन में जिसका जैसे प्लेन बैच का स्टूडेंट है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ओके है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, तो वो लोग कंपोजिशन ऑफ एसएचएम करना है। देयर इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन जिससे हमें एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। दीज आर ऑल प्योरली मैथमेटिकल बेस्ड। स्टेशनरी वेव्स है, बीट्स फॉर्म करना है। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स में बीट्स का एनालिटिकल ट्रीटमेंट है, साइन कोसाइन फंक्शन है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है। दीज आर ऑल लॉन्ग डेरिवेशंस। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट ओवर हियर दैट विदाउट प्रिपेयरिंग, बिकॉज मैंने तो आपको एग्जाम का सेशन दिया है कि एक भी लॉन्ग आंसर मैंने अटेम्प्ट नहीं किया लॉन्ग डेरिवेशन, सो लॉन्ग आंसर को अवॉइड किया जा सकता है, उसका ये डेमो था। सो नेक्स्ट वन, टू सपोर्ट दिस ऑल एनालिसिस, आपको मैं सिंपल सा ट्रिक देता हूं। मैंने एक बोर्ड एग्जाम का पेपर लिया, रिसेंट बोर्ड एग्जाम 2020 नवंबर में हुआ था। तो उस बोर्ड एग्जाम में जैसे मैंने आपको प्रेजेंट किया, यू कैन चेक ऑन योर ओन, बोर्ड एग्जाम का पेपर देख लो, आपको जस्टिफाई हो जाएगा व्हाट वाज माय पॉइंट। दिस इज फर्स्ट इज यूजुअल, जिसमें आपको नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, एंड सेक्शन ए, इसमें तो कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कैसे आते हैं एमसीक्यूज। बट हमारा अब जो एम है अबाउट लॉन्ग डेरिवेशन, तो सेक्शन ए इज नील, शॉर्ट आंसर में पॉसिबल ही नहीं है। सेक्शन बी, इफ यू वांट आई कैन गिव अ डेमो ऑफ इट, यू कैन वेरीफाई द क्वेश्चंस। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देखो, 2 मार्क्स, इट्स अ डेफिनेशन। Next is a distinguish. I'm just highlighting the type of question, not the content, because इस लेशन में हम content को touch नहीं कर रहे हैं। I won't explain you what is mean by a particular quantity, particular phenomena, वो आपको अच्छे से आ जाएगा और आता भी है। I'm just explaining type of question and format of the exam. तो बच्चों पहला क्वेश्चन डेफिनेशन में गया, फिर डिस्टिंग्विश में गया, फिर एक नोट पूछा है। That means these are all about a theory question based, not at all about the derivation. Now check question number next में, obtain the relation between magnitude of linear acceleration and angular acceleration. Derivation आ गया, लेकिन if you can see this derivation, it is just a 3-step derivation, because they have asked you magnitude of accelerations which is linear and angular, जो 2 step में आ जाता है, मतलब ये short हो गया, no problem at all. And then you can see step postulates है, deduce Boyle's law है, फ्रॉम द प्रेशर एक्सर्टेड, जो मैंने आपको एड्रेस किया था, अगेन 3 स्टेप का है, लॉन्ग नहीं हो सकता। उसके बाद सारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए। दैट मींस हियर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेक्शन बी हमारा क्लियर हो गया। जिसका वरी हमें होता है वो सेक्शन सी है। चेक फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू ओनली एनालाइज योरसेल्फ, दिस इज अ बोर्ड पेपर, तो जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स दिया है उसे टैली करो। यहाँ पे यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन है यहाँ पे जो थ्योरी के है, आपको एनालाइज करना है। उसमें से आपको मैं हाईलाइट करके दे रहा हूं सो दैट देखो, एज आई सेड ऑल 7 कैन नॉट बी डेरिवेशन। इसे देखो क्या है, इट्स अ डेफिनेशन। क्लियर हो गया? चेक करो इसे क्या है। एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम ऑफ अ ब्लैक बॉडी। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही चले गए जो हमने मिनिमम पकड़ लिए थे। नाउ चेक द नेक्स्ट वन, 19 क्वेश्चन देखो क्या है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्टेट एनी 2 एप्लीकेशंस। सो ऑब्वियस है, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी लॉन्ग डेरिवेशन का नहीं है। स्टेट एंड प्रूव पैरेलल एक्सेस थ्योरम, मतलब दिस इज अ प्रॉब्लम, ये डेरिवेशन लॉन्ग हो गया। 17 देखो, एक्सप्लेन डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, स्टेट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। दैट मींस ये भी डेरिवेशन नहीं है, अटेम्प्ट किया जा सकता है विदाउट लॉन्ग डेरिवेशन। क्लियर हो रहा है? डिफाइन लीनियर एसएचएम, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अगर प्रॉपरली सोच पाते हो तो डिफरेंशियल ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज जस्ट अ 3 और मैक्सिमम 4 स्टेप का डेरिवेशन, वो शॉर्ट में जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड करना इज अ शॉर्ट डेरिवेशन, आपने बहुत बार प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। बिकॉज वो शॉर्ट क्यों पूछा? बिकॉज उन्होंने 2 क्वेश्चन कंबाइन किया, डेफिनेशन पूछा एंड इसलिए डेरिवेशन शॉर्ट आया। स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऑब्टेन द रिलेशन। चलो इसको डेरिवेशन में डाल देते हैं। डेमो मिला आपको, 7 में से सिर्फ 2 डेरिवेशंस आया, 2 डेरिवेशन। मतलब अगर ये स्टूडेंट
इस एग्जाम में लॉन्ग डेरिवेशन नहीं करता है तो भी उसको पूरा अटेम्प्ट मिलेगा। मैंने तो वहां पे एक क्वेश्चन शॉर्ट रखा था, आपने नोटिस किया होगा। यहाँ पे देखो पूरा अटेम्प्ट, एक भी लॉन्ग डेरिवेशन नहीं। चेक दिस। अब यहाँ पे दीज आर ऑल न्यूमेरिकल्स, तो यहाँ पे तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज टू बी सॉर्टेड सेपरेटली बिकॉज राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग लॉन्ग डेरिवेशंस। अब बच्चों हम आते हैं सेक्शन डी में। तो सेक्शन डी में जैसे डिस्कस किया था, दो क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं, दे कैन बी लॉन्ग डेरिवेशंस। चेक करो पेपर में, शो दैट ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एयर कॉलम। नहीं पढ़ा, लॉन्ग डेरिवेशन है, बच्चे ने नहीं पढ़ा, अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, आपने पढ़ा भी हो सकता है, बट हमारा मेथड जो था लॉन्ग डेरिवेशन नहीं पढ़ा। What is rectifier? With the help of neat circuit diagram, explain the working of full wave rectifier. अब ये जो क्वेश्चन है, it is not a long derivation, but it is a electrical circuit and some explanation. तो ये मैंने इसको स्टार मार्क किया because either ways it can be inclined. फिर भी मैं इसे भी ड्रॉप कर देता हूं। चलो ये भी आपको नहीं आया। Check the next one. What is capillarity? Give any two applications of capillarity. I hope ये question possible है। It's not a long derivation. State the advantage and disadvantage of moving coil galvanometer. Check. It's not a long derivation. Chance ही नहीं है। और 2 मार्क का न्यूमेरिकल। 31st क्वेश्चन देखो, derive an expression for magnitude of magnetic dipole moment of an electron. Derivation आया, but if you know it, if you have prepared it, to find magnetic moment of electron is just a 4-step derivation. M is equals to I, that is a contained part, but just try to guide. M equals to IA लिख के current और area लिखना है. No big diagram, there is no diagram itself. There are no big mathematical step, मतलब ये बच्चा कर सकता है. That means अगर आप इस पेपर को एनालाइज करते हो, तो मैंने तो आपको 67 मार्क्स का टारगेट दिया था, इस पेपर में कितना आता है 70. That means इस एग्जाम में जो अपना नवंबर में हो गया, बेसिकली जिसने लॉन्ग डेरिवेशन पढ़ के गया, लुक एट द अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चंस आए थे? 4, ओनली 4 लॉन्ग डेरिवेशंस। सेक्शन डी में 2 आए हैं और सेक्शन सी में 2 पकड़ लिया हमने, दैट्स इट। लेकिन जिस बच्चे ने वो एग्जाम दिया, उससे अगर पूछोगे कि क्या डिफिकल्ट था, उसका रिव्यू वही होगा, डेरिवेशंस की वजह से पेपर डिफिकल्ट गया, दैट इज द रिव्यू। So I hope my point is clear to everyone. I again repeat, there are some students who are very good with the mathematical skills, तो उन्होंने long derivation किया भी होगा. So I am not telling you to just wipe it out. No, nothing like that. My aim is those who are facing problem to do the long derivation, to attempt the long derivation, उनके लिए मैंने एक simple सा path provide किया. Don't do it. Straight away, don't do it. Because just look at the chapter. I give you a second demo now. इसी पॉइंट को प्रूव करने के लिए सेकंड डेमो दे रहा हूं। चेक दिस आउट। मैंने एक चैप्टर का एग्जांपल लिया, ठीक है, आप ये हर चैप्टर के लिए करो। मैंने एक एग्जांपल लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, सर मैंने ऑप्शन में रखा है, बहुत लेंथी है, बहुत मैथमेटिक्स है, तो मैंने इसीलिए पर्पसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिया, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब देखो इस चैप्टर में, इफ यू हैव अ टेक्स्ट बुक विथ यू राइट नाउ, टैली कर लो। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक है राइट नाउ, टैली कर लो। जितना पार्ट बोला गया है लॉन्ग डेरिवेशन, पेंसिल से उसे क्रॉस करते जाओ, एंड देन सी द कंटेंट ऑफ द चैप्टर, एंड यू विल सी इट्स नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चेक दिस, लॉन्ग डेरिवेशन का लिस्ट बनाया, चैप्टर देखो और लॉन्ग डेरिवेशंस देखो। अपने एग्जाम में 4 आए थे, चैप्टर के डेरिवेशंस देखो। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, आउटसाइड शेल, आउटसाइड सिलेंडर, आउटसाइड प्लेन शीट, 3 डेरिवेशन हो गया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस एंड डाइपोल, मतलब 2 डेरिवेशन हो गया, एक चार्जेस के लिए, एक डाइपोल के लिए, 5 कंप्लीटेड। पोटेंशियल बाय अ पॉइंट चार्ज एंड अ डाइपोल, अगेन 2 डेरिवेशन आया, एक पॉइंट चार्ज का, एक डाइपोल का है, उसका लेंथ तो आपने देखा होगा, बहुत बच्चों ने इसे प्रैक्टिस करने का कोशिश भी किया होगा। 7 डेरिवेशन इन 1 चैप्टर। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक, 2 डेरिवेशन आता है, विथ एंड विदाउट है, 2 और ऐड हो गया, 9 हो गया। लास्ट में एनर्जी डेंसिटी फाइंड करना है, 10। नाउ यू ओनली डिसाइड। अगर कोई बच्चा जिसका ठीक से पढ़ाई नहीं हुआ अब तक, ये 10 डेरिवेशंस पढ़ने जाता है, उसके बाद वो डेफिनेशंस है, उसमें कुछ फॉर्मूला है, कितना पढ़ पाएगा?
और इन 10 डेरिवेशन में से कितना एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएगा. So, moral of the story, if you're still not prepared, just avoid this, straight away avoid this. Trust me, एक भी डेरिवेशन नहीं करना है. बट मार्क माई वर्ड्स, आई एम डिस्कार्डिंग डेरिवेशन. अगर राइट साइड देखोगे तो मैंने पर्पसली इसलिए चैप्टर का एग्जांपल दिया. आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड शेल का डेरिवेशन नहीं किया, बट उसका जो फॉर्मूला है हम उससे नहीं एक्सक्लूड कर रहे हैं. Because electric intensity of a shell may be of 10 lines, 12 lines, but formula will be just few variable जो हमें पढ़ना है. तो हमने ये 10 to 10 derivations के जो efforts थे उसे convert किस में किया? 10 formula में convert किया. And just do it with one chapter and do you only decide कि कितना difference आता है. That electrostatics के ये derivation नहीं पढ़ना ऐसा मालूम पढ़ने के बाद फिर आप उसको पढ़ के देखो and you will have a change in the review. Electrostatics is not complicated. It was this mathematical derivations which was really difficult to read also, to prepare also and to write in the exam also. तो physics में अब तक जो major problem हमने देखा था वो है long derivations. Long derivation. Now you can take a call. If you find any long derivation जो easy है, you can do it. I'm not putting a compulsion. It's just a guideline to score a decent mark of 85-90 in board exam out of 100 including practicals. 85-90 का स्कोर भी लाया जा सकता है without doing a long derivation, without preparing a long derivation. And इसलिए मैंने आपको list of topic बताया, एक example set मैंने करके दिया, ये आप अपने चैप्टर में करो. list of topic बनाया बच्चों. तो list of topic में definition of electric potential, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो ये जो टॉपिक है वो इंक्लूड किया. उस टॉपिक का डेरिवेशन में भी एक्सक्लूडेड, वो हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे, बट फॉर्मूला हमें चाहिए, डेफिनेशन हमें चाहिए. एग्जांपल देखो, कैपेसिटी. जब मैंने कैपेसिटी का बात किया, जब बच्चों मैंने कैपेसिटी का बात किया तो कैपेसिटर का डेरिवेशन लेंथी है, मैंने उसको एक्सक्लूड कर दिया. बट कैपेसिटी का जो डेफिनेशन है, उसका कॉन्सेप्ट है, उसका फॉर्मूला है, आई कैन नॉट एक्सक्लूड दैट बिकॉज लॉन्ग डेरिवेशन के क्वेश्चन एक्सक्लूड करने हैं, उस टॉपिक को एक्सक्लूड नहीं करना है. डोंट मिस इंटरप्रेट, डू नॉट मिस इंटरप्रेट. कैपेसिटर के डेरिवेशन एक्सक्लूड कर दो, चलेगा. एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन एक्सक्लूड करो, चलेगा, बिकॉज एग्जाम में उस डेरिवेशन के क्वेश्चन नहीं करने हैं. बट डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, that can be asked for 1 mark, 2 mark in multiple choice questions, very short answer, and even in the section B, even in the section D. And therefore what I'm trying to make you understand is यहाँ पे derivations बच्चों जो problem है. Now this is the list of things जिसमें एक चीज highlighted रखा है, all formulae. This is my point, do not misinterpret. कि अगर मैं किसी 10 डेरिवेशन को मैंने डिलीट किया तो मेरा ऑलमोस्ट मिनिमम 10 पेजेस कम हो गया पढ़ने का, मिनिमम 10 पेजेस. और वो 10 पेजेस मुझे सिर्फ 10 लाइंस में पढ़ना है. क्यों? बिकॉज उनका फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला एक्सक्लूड नहीं करना है. ठीक है. सो दिस इज माय फर्स्ट रिव्यू अबाउट द फिजिक्स प्रिपरेशन कि 2 ही प्रॉब्लम मेजर है, जिसमें से पहला प्रॉब्लम आता है डेरिवेशंस, एक्सक्लूड करो और लिस्ट ऑफ टॉपिक बनाओ. मैंने आपको एक चैप्टर बना के दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. यू मेक इट एनी अदर चैप्टर, कोई भी चैप्टर ले लो, केटीजी करके देखो. आज केटीजी का प्रेशर का डेरिवेशन निकाल दो, प्रेशर का डेरिवेशन निकाल दो और केटीजी का कंटेंट देख लो क्या है, एंड यू विल फाइंड इट्स एब्सोल्युटली सिंपल. वो मैक्सिमम एफर्ट वही डाइवर्ट हो जाता है. क्लियर? सो हाउ टू अप्रोच द चैप्टर्स, हमने तो सॉर्ट आउट कर लिया कि प्रिपरेशन कैसा करना है, हर चैप्टर में अप्रोच क्या होना है. अब हम क्या करेंगे कि लेट्स मेक अ लिस्ट. नाउ अगेन बी ओपन फॉर दिस. व्हेन आई से समथिंग कॉल्ड इजी, समथिंग कॉल्ड मॉडरेट, समथिंग कॉल्ड डिफिकल्ट, इट्स वेरी ऑब्वियस. फॉर टीचर्स एवरीथिंग ऑलमोस्ट रिमेन्स टू बी सेम, बट फॉर स्टूडेंट्स विद देयर परसेप्शन हमने कुछ एनालाइज किया डेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या रिव्यू देते हैं. तो दिस इज अ टेंटेटिव आइडिया. अगेन आई रिपीट, इसमें से एग्जांपल दे रहा हूं. रोटेशनल डायनामिक्स को मैंने मॉडरेट में रखा है, नॉट टू इजी, नॉट टू डिफिकल्ट. सम स्टूडेंट मे गिव मी अ रिव्यू, नहीं सर ये तो बहुत ही इजी है, इजी में जाना चाहिए. दैट्स परफेक्टली फाइन.
This is not a rigid distribution of easy, moderate and difficult. It is just a presentation कि आपको गाइड किया जा रहा है, इस तरह से आपको ग्रुपिंग करना है. तो when you prepare a chapter, लॉन्ग डेरिवेशन अवॉइड किया है, अभी आपके चैप्टर का लिस्ट क्या होना चाहिए? तो वो लिस्ट बच्चों 3 कैटेगरी में होना चाहिए. इट शुड बी इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट. सबसे ज्यादा एफर्ट डिफिकल्ट में नहीं लेना है, इजी और मॉडरेट में लेना है, बिकॉज ये दो सेशंस है, सेट्स है, जो बच्चों में मैक्सिमम मार्क्स देने वाला है. बिकॉज डिफिकल्ट हमें डिफिकल्ट जा रहा है तो ज्यादा एफर्ट पुट अप करो नहीं. लेट इट बी लाइक दैट. पहले अपने प्रीलिम्स में, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम, पहला जो प्रीलिम्स होगा बच्चों, उसमें पहले इजी और मॉडरेट, जो सो कॉल्ड आपको इजी लगता है, तो चेक इट आउट नो कि अगर नहीं, एम आई गेटिंग आउट ऑफ मार्क्स इन दो चैप्टर्स. इफ आई से मेरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें सिर्फ सरफेस टेंशन है और लास्ट में कुछ फ्लूइड्स है, उसका 3-4 फॉर्मूला है. अगर मुझे ये इजी लगता है और बोर्ड एग्जाम में या मेरा प्रीलिम एग्जाम, पहले प्रीलिम एग्जाम में मेरा बहुत सारा रॉन्ग हो गया, मैं अटेंड नहीं कर पाया, तो व्हाई यू कॉल दिस एज डिफिकल्ट एंड व्हाई यू कॉल दिस एज इजी? दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन. तो इसलिए जो अपने इजी चैप्टर है उनको इंटैक्ट बना लो, इजी और मॉडरेट. इजी और मॉडरेट मिलके कम से कम आपका 60% कवर होना ही चाहिए. इट शुड बी मोर देन दैट. आई एम टॉकिंग मिनिमम लेवल, मिनिमम 60% कम से कम होना ही चाहिए. एंड देन डिफिकल्ट टॉपिक जो है, उसका जो परसेप्शन है वो एज पर द प्रीलिम आपका चेंज होगा. यू विल रियलाइज कुछ चैप्टर जिसको आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, व्हेन यू एक्चुअली प्रिपेयर विद अ प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर अप्रोच, यू विल फाइंड दैट दे आर इजी. जैसे एग्जांपल, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये चैप्टर में 2 ऑप्शंस है. जो स्टूडेंट उसे सीक्वेंस में नहीं पढ़ते, जैसे सरफेस टेंशन ये क्या है पता नहीं है, और वो बच्चा फ्लूइड्स को रिवाइज कर रहा है, तो उसमें लेंथ है, पिन का लेंथ है, वो ट्वाइस क्यों लिया, बबल और ड्रॉप में डिफरेंस क्या है, ये वो कभी नहीं समझ पाएगा. सो दैट मीन्स इजी डिफिकल्ट एक परसेप्शन भी है, बट फिर भी इन जनरल हमने आपको एक लिस्ट बना के दिया है. यू कैन increase, decrease, and you can change the content of this easy and difficult as per your perception. So आपको मैंने 2 guidelines provide किया. How to prepare a chapter, basically long derivation avoid कर लो, list the topics, list the formula, and then approach in a group wise chapter, not in a sequence 1 2 3 4 follow करने की जरूरत नहीं है. Clear? Check the next. Now हमने पूरा प्रिपेयर कर लिया, एक चैप्टर लिया, हमने सारा सीक्वेंस फॉलो किया, लॉन्ग डेरिवेशंस अवॉइडेड, फिर हमने उसका लिस्टिंग बना लिया, इजी चैप्टर है, मैंने पढ़ लिया. अब पढ़ लिया मतलब कैसे पढ़ा? तो ये बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बच्चे मिस कर देते हैं. एग्जांपल देता हूं, डायग्राम है. यू एक्चुअली फील कि डायग्राम को रीड किया और मैंने प्रिपेयर किया, हो गया मेरा? नहीं, मिस्टेक्स है बच्चों, नहीं हो सकता. देयर आर माइन्यूट थिंग्स व्हिच गोज रॉन्ग, देयर आर माइन्यूट थिंग्स व्हिच गोज रॉन्ग. सो डायग्राम ऐसा चीज है जो आपको एक्चुअली प्रैक्टिस करना पड़ेगा. अब इसमें एक हिंट बच्चों, डायग्राम्स में देयर आर सम डायग्राम्स, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल देता हूं, ठीक है? सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया, सो लेट मी सी. एक डायग्राम प्रैक्टिस किया बच्चे ने. अब ये प्रैक्टिस क्यों करना है? ये डेरिवेशंस है, लॉन्ग कह सकते हो इनको, बट फिर भी हम इसे प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ आवर प्रैक्टिकल सिलेबस, इसलिए उनको पढ़ना ही है. तो थ्योरी में भी पढ़ेंगे हम लोग. मैंने एक पोटेंशियोमीटर ड्रॉ किया और यहाँ पे मैंने एक सेल लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और ये बच्चों मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. और फिर बच्चे ने यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का एप्लीकेशन है, तो बच्चे ने फिर उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस लगा दिया ऐसे. दिस इज द डायग्राम विच इज ड्रॉन इन द एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में ड्रॉ कर दिया. अब इस डायग्राम को बेसिकली सपोज 1 मार्क है इन डेरिवेशन, बाकी 2 मार्क राइटिंग को है, तो 1 में से इस बच्चे को मार्क्स मिलेगा जो ट्राई टू आंसर योरसेल्फ एंड वेरीफाई करना. इस बच्चे को 1 में से कितना मार्क मिलेगा पता है? 0. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल सी कि नहीं सर इसमें तो बहुत कुछ करेक्ट है, पोटेंशियोमीटर राइट है, गैल्वेनोमीटर है, सब तो बराबर है, 0 कैसे दिया? तो मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो. लेट मी सॉल्व नाउ, बिकॉज अपने पास लॉगिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, सब अनम्यूट हो गए तो फिर डिस्टर्बेंस आएगा. सो नो सरप्राइज, नो सस्पेंस. बच्चों इस डायग्राम में कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है.
पोटेंशियोमीटर में इफ यू आर read the potentiometer and revised it properly, ऐसा सेल पोटेंशियोमीटर में नहीं लगाया जा सकता। पोटेंशियोमीटर में जहां पे उसका ड्राइवर का पॉजिटिव होता है, एक्सटर्नल सेल का भी वहां पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इस सर्किट डायग्राम में लेबलिंग कम होता, करंट ड्रॉ नहीं किया होता, तो भी कॉन्सेप्चुअली करेक्ट है। अब इस डायग्राम में सब सिंबल से सब है, बट दिस डायग्राम इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग। पोटेंशियोमीटर में ऐसा रेजिस्टेंस कभी, सॉरी, ऐसा सेल कभी नहीं लग सकता। दिस इज योर प्रिपरेशन लेवल। तो जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये क्लिक होगा कि सेल ऐसा ड्रॉ करना रॉन्ग है। पोटेंशियोमीटर में ऑल टर्मिनल्स का पॉजिटिव शुड बी एट 1 पॉइंट। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो इसे कहते हैं प्रैक्टिस विच इज रिटन। जब मैंने बुक ओपन किया, उसमें डायग्राम देखा, ओके मुझे आता है, बट दैट इज टेम्पररी। एग्जाम में ये सारे डेमो आते हैं। अब बच्चा क्या बोलेगा, मैंने पूरा डायग्राम ड्रॉ किया, आधा मार्क तो दो। नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे कंपोनेंट मिसिंग नहीं है, लेबल मिसिंग नहीं है, दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। कोई लेबल है कम किया, ठीक है, दे दो मार्क्स। बच्चों ये डायग्राम कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है। दिस कैन नॉट बी अ पोटेंशियोमीटर। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आई एम ट्राइंग टू एड्रेस। इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया। अब बच्चा शॉर्ट डेरिवेशंस है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। वो व्हीकल ऑन द कर्व रोड हो सकता है, केटीजी है तो उसमें वो आरएमएस वेलोसिटी हो सकता है, बॉयल्स लॉ हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो वो आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करना है, बिकॉज हमने अपना बर्डन तो कम कर लिया है, तो अपने पास कोई अच्छा सा टाइम है, तो उस टाइम में शॉर्ट डेरिवेशन को रिटन प्रैक्टिस करो। जो भी चैप्टर है उसमें हमने ये सारा लिस्ट बना लिया है और हम राइटिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाय दिस मे बी आपका 16 में से 14 चैप्टर ही हुआ, 12 चैप्टर ही हुआ, बट वो ऐसे हुआ है कि व्हेन यू अपीयर फॉर एग्जाम, व्हेन यू सी अ क्वेश्चन, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपने रिटर्न में प्रैक्टिस किया और वो एग्जाम में आ गया, क्या होगा, यू नो इट, मैंने रिटर्न प्रैक्टिस किया, ड्रॉ करके हो गया। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने ओरली प्रैक्टिस किया है, एग्जाम में आने के बाद वो राइट है या रॉन्ग है मुझे पता नहीं है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि मुझे मार्क्स मिलेगा नहीं। तो बच्चों जितना भी पढ़ाई करोगे उसे राइटिंग में कन्वर्ट करो। रेयर केस में डेफिनेशन से चलो वर्बली चलेगा, ग्रामेटिकल फेलियर से आपने ऐड किया चलेगा, बट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट चाहिए। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे डेफिनेशंस में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं। एग्जांपल देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन, ठीक है, आई एम गोना स्टेट द डेफिनेशन, लिखने के लिए थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन आया, ठीक है। डेफिनेशन इज, एक बच्चे ने डेफिनेशन लिखा, एमआई ऑफ अ बॉडी इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल and square of the distance from the axis of rotation. Summation is for entire particles of the body. ये बच्चे ने डेफिनेशन लिखा और इसका मार्क्स हमने दिया बोर्ड एग्जाम में 0। 2 मार्क का डेफिनेशन था, 0 मार्क्स दिया। आई रिपीट वन मोर टाइम, अपना अपना एनालाइज कर लो। MI of a body is the sum of product of mass of each particle, square of the distance, and summation is for entire particles of the body. आंसर 0 मार्क्स में चला गया। स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चलो करेक्शन डाला, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर भी मार्क्स 0 बेटा। रिजिड बॉडी बोला, फिर भी 0 मार्क्स। एनीवन फुल फॉर्म नहीं यूज नहीं चलेगा, फुल फॉर्म नहीं टेकन फॉर ग्रांटेड। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस किया, MI जब पढ़ोगे तो MI is a tensor quantity. Have you done that? It's a tensor quantity. That Yes, means one body cannot have one MI. It can have several MI. So जब आप उसे define कर रहे हो, you have to define for a particular axis of rotation. So your definition should be MI of the body about an axis. Because without axis, MI cannot be defined. It is a tensor quantity. That's the problem. So these are the things. So definition पूरा आपको लगेगा कि almost लिखा है, but जो conceptual part miss होता है, जो आपने इंट्रेंस में अच्छे से प्रिपेयर किया है, उसे इंक्लूड करो, ग्रामेटिकली चेंज करो, ऑर्डर चेंज करो, विल डू, बट कॉन्सेप्चुअल पार्ट वहां पे होना चाहिए। दिस आर फ्यू एग्जांपल्स आई एम लिस्टिंग कि प्रिपरेशन लेवल कितना स्पेसिफिक होना चाहिए। इट इज नॉट हाँ MI आता है, प्रोडक्ट है, मास है, नॉट लाइक दैट, इट शुड बी प्रिसाइज। एंड दिस इज द रीजन बाय दिस अटेम्प्ट तो हो जाता है, मार्क्स कम हो जाते हैं।
So take care of this thing. I hope you're able to understand my points. So that is about definition. but जो statement of laws इसमें भी same आता है कि statement of laws में it should be precise. जो main core part है law का वो वहां पे होना चाहिए. इतना भी short नहीं करना है कि that means वो meaningless ही हो जाएगा. ठीक है? There are so many examples. टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. Theorems. जैसे एग्जाम्पल अभी जैसे MI का बात किया, देयर इज अ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, बट अच्छा है कि वो ऑलमोस्ट वो डिलीटेड है तो वहां पे वो टाइम बच गया. तो जब थ्योरम रिवाइज करोगे स्टेटमेंट आ सकते हैं, प्रूफ आ सकते हैं, तो दैट इज योर कॉल. शॉर्ट है कंप्लीट करो, लॉन्ग है स्किप कर दो. एंड देन शॉर्ट डेरिवेशन का तो हमने बात कर लिया. तो व्हेन यू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, सी टू इट दे आर कॉन्सेप्चुअली करेक्ट. और प्लेन बैच आई कैन अंडरस्टैंड उन्होंने उसका बहुत प्रैक्टिस नहीं किया है, बट स्टिल आपका टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट, क्लास में जो कराया गया उसमें आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, तो वो कॉन्सेप्ट के की पॉइंट्स जब रिटर्न प्रैक्टिस करोगे तो उसे हाईलाइट करो कि दीज आर द की पॉइंट. बाकी सब ग्रामेटिकल फिलर्स है. जैसे MI का डेफिनेशन बाहर करना है तो इट इज अबाउट एन एक्सिस, प्रोडक्ट ऑफ mass of the particle, square of the distance. That is okay to prepare. Grammatical fillers change करो, update करो, that is okay. Conceptual point नहीं change होने चाहिए, otherwise no marks will be given. So this is the way of preparation. I hope you are getting a sequence now. Now check. हमने दो problems देखे थे. हमने long derivation को निकाल दिया, हमने अपना पढ़ाई सिंक्रोनाइज कर लिया. अभी हमारा हर चैप्टर एक स्ट्रेंथ में आ गया है. राइटिंग प्रैक्टिस करके हमने उसे इंटैक्ट कर लिया है. अब बचता है न्यूमेरिकल प्रिपरेशन. अब ये जो न्यूमेरिकल प्रिपरेशन है इसका मैं एक बाइफर्केशन दूंगा एज पर द प्लेन एंड एंट्रेंस बैचेस. आई एम नॉट डिवाइडिंग देम, ओके? इट इज नॉट आई एम डिवाइडिंग देम, बट बाय प्रैक्टिस द थिंग्स आर गेटिंग डिफरेंट. प्लेन बैच का एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ही कम है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कम होता है कंपेयर टू जेई एंड नीट बैचेस. इसीलिए वो डिस्टिंग्विश आ रहा है. कोई अच्छा है कोई बुरा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दोनों एक ही एग्जाम दे रहे, एक ही कंटेंट का एग्जाम दे रहे हैं. ठीक है? सो न्यूमेरिकल प्रिपरेशन कैसे करना है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट बच्चों ये मिस कर देते हो, फॉर्मूला लिखने हैं. वन चैप्टर देयर आर, नाउ हमने लिस्ट किया, डेरिवेशन का बर्डन निकाल दिया, तो 10 फॉर्मूला है, 12 फॉर्मूला है. स्टार्ट राइटिंग देम. फॉर्मूला स्पॉन्टेनियसली आना ही चाहिए. देयर शुड नॉट बी अ मिस्टेक. अरे रूट था, अरे स्क्वायर था, अरे वो न्यूमरेटर था. नो, नथिंग लाइक दैट. इट शुड नॉट. उससे क्या प्रॉब्लम होगा वो हम एड्रेस करेंगे अभी. तो राइटिंग फॉर्मूला इज मस्ट. इट इज नॉट वंस, कंसिस्टेंट. हेंस फॉर जितना टाइम बचा है कंसिस्टेंटली कीप राइटिंग फॉर्मूला. टेक अ ग्रुप ऑफ 3 चैप्टर्स एवरी डे, 3-4 चैप्टर्स एज पर योर टाइम अवेलेबिलिटी. कि हर डे 3 या 4 चैप्टर जो प्रिपेयर्ड है उसका फॉर्मूला लिखते जा रहा हूं. इट विल नॉट टेक आवर्स, बट इट विल गिव यू द परफेक्शन एंड द मार्क्स व्हिच यू नीड. फॉर्मूला के बाद ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला. अब ये है क्या? एग्जांपल देता हूं, शायद समझने में बेटर रहेगा. आई एम एक्सप्लेनिंग अ फॉर्मूला व्हिच इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. दिस इज R(L1 upon L2 minus 1). मैंने फॉर्मूला लिख दिया, बच्चे ने बाहर कर लिया. अब ये बच्चा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहा है. ठीक है? अब मेरा क्वेश्चन उससे है, व्हाट आर L1 L2? सो L1 L2 दोनों लेंथ है, उसने ये भी पढ़ लिया, लेकिन L1 L2 कौन सा लेंथ है? सो यहाँ पे L1 L2 कौन सा लेंथ है, R कौन सा रेजिस्टेंस है, ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. बिकॉज आई टेल यू सेम, इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला बाहर किया बच्चे ने, और बच्चे को क्वेश्चन दिया E का वैल्यू है 10 वोल्ट, और जब V चेक किया सेल का तो वो वैल्यू आया 8 वोल्ट, और ये करने में रेजिस्टेंस लगाया था विच इज गिवन एज 5 ohms. मैंने एक न्यूमेरिकल क्रिएट किया जो आपको इंट्रोस्पेक्ट करके देगा आपका फॉर्मूला कितना प्रिपेयर्ड है. एनीवन, इज इट पॉसिबल टू गेट इंटरनल रेजिस्टेंस? आई डोंट वांट द आंसर, अपना आंसर अपने पास रखो. इज इट पॉसिबल टू गेट इंटरनल रेजिस्टेंस इफ दिस इज द डेटा विच इज गिवन? Yes, और sir. आपका जो आंसर होगा yes, that means you know the concept. If you say no, that means there is some flaw in your preparation of the concept. Because primary level में क्या लग रहा है, L1 L2 दिया और E और V दिया, तो कैसे पॉसिबल है? बट अगर कॉन्सेप्ट प्रिपेयर्ड है तो आपने एक स्टेप पढ़ा होगा कि E by V is only L1 by L2 and therefore this numerical can be solved. तो सेकेंड पॉइंट को क्लियर कर लो. सेकेंड पॉइंट, it's not just by hearting the formula, it is knowing the concept of formula.
कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फॉर्मूला में क्या है। जैसे एग्जांपल, कैपेसिटर का एक फॉर्मूला दिया, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक सम एग्जांपल सो दैट जो मेरा बेसिक पॉइंट है वो आपको क्लियर हो जाए कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू एड्रेस, बिकॉज कंटेंट को तो हम नहीं ले रहे, कंटेंट इज जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस। C is equals to A epsilon 0 upon D, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे जो A लिखा है, what this A stands for? Choose answer for Area. surface area or cross sectional area. These are the two things which are asked. Is it the surface area? Is it the cross sectional area? And keep your answer with you. And by the concept in this formula, A should be a surface area. It is not a cross sectional area. तो ये बहुत सारे जगह पे मिस्टेक है कि बच्चे को ए क्या है, एरिया इतना याद है, सरफेस या क्रॉस सेक्शनल नहीं समझ में आता। सो ये भी आपको एड्रेस करना है दैट व्हेन यू प्रिपेयर अ फॉर्मूला, सिंबल्स बहुत ही सिंपल है बच्चों, रेयरली देयर आर 10 to 12 इन एंटायर फिजिक्स जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे है, जैसे एटॉमिक फिजिक्स में है, बहुत सारे वेरिएबल्स है। अदरवाइज इफ यू सी अदर फॉर्मूला दे आर एब्सोल्युटली, मतलब कर सकते हो, थोड़ा एफर्ट से कर सकते हो, बट सेकेंड पॉइंट को अटैच कर लो, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला बच्चों। विदाउट कॉन्सेप्ट इफ यू जस्ट ब्लैंकली बाय हार्ट फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ taking the numericals from the textbook, taking the solutions from others book and seeing the solution, nothing. Spend time on by hearting writing formula and concept of formula. ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सिंबल ऑफ क्वांटिटीज। अभी एक्सप्लेन किया कि ए क्या है, सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपको क्लियर होना चाहिए। डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्लियर होना चाहिए। सी स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द वे, आपको वेरिएबल्स क्लियर होना चाहिए। आई कैन गिव सम एग्जांपल्स टू जस्ट डेमोन्स्ट्रेट द सेम दैट सिंबल क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप अपने आंसर अपने पास रखो और वेरीफाई करते जाओ। मैंने एक फॉर्मूला लिखा, चलो एसी सर्किट का फॉर्मूला, मैंने हिंट भी दे दिया, ऐसे मैंने फॉर्मूला लिखा। सो इन दिस केस इफ आई आस्क यू व्हाट दिस ई रिप्रेजेंट, बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। कुछ बच्चे राइट कर लेंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, बट बहुत सारे बच्चों का मिस्टेक होगा। मोस्ट ऑफ देम विल से इट इज ईएमएफ, मोस्ट ऑफ देम विल से ईएमएफ, व्हिच इज पार्टली करेक्ट, नॉट कॉन्सेप्चुअली। बच्चों यहाँ पे ये भी ईएमएफ है और ये भी ईएमएफ है, दोनों ईएमएफ ही है। सो इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड नो, अगर दोनों ईएमएफ है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। सो व्हेन यू प्रिपेयर अ फॉर्मूला व्हिच आर एब्सोल्युटली सिंपल, यू शुड नो व्हाट द वेरिएबल रिप्रेजेंट। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, अगर वेरिएबल क्लियर है तो उसके यूनिट्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए, बिकॉज 2 मार्क के जो क्वेश्चंस है, देखो बोर्ड एग्जाम लास्ट 2 साल का पेपर्स देखो, टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आस्क, नॉट द कंटेंट, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। 2 मार्क्स के मैक्सिमम क्वेश्चन देखो, यूनिट्स विल बी कन्वर्टेड, मोस्ट ऑफ देम। वो सेंटीमीटर होगा, वो मिली एम्पियर होगा, वो नैनो कूलम होगा, इट विल बी कन्वर्टेड। एंड देयरफॉर दैट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 2 मार्क क्वेश्चन, बिकॉज फॉर्मूला तो कॉम्प्लिकेट नहीं हो सकता, मल्टीपल फॉर्मूला नहीं दे सकते, एक ही फॉर्मूला दे सकते हैं। सो दे मेक यूनिट्स कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब सिस्टम चेंज करते हैं। आई होप यू गॉट दैट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स उसी के साथ कनेक्टेड आ जाएगा। यू शुड नो द एसआई यूनिट्स, कन्वर्जन कर लो। एंड प्रैक्टिस ऑफ सम न्यूमेरिकल्स। ये पूरा सेशन होने के बाद आपने 4 फेजेस 5 फेजेस पार कर लिए, फिर आप कुछ न्यूमेरिकल्स ले लो, उसका प्रैक्टिस करो, अब वो राइट तरीके में जाएगा। अब आपको डेमो मिलेगा, इंट्रोस्पेक्ट होगा कि आपका फॉर्मूला कितना क्लियर है, आपको वेरिएबल्स कॉन्सेप्चुअली कितना क्लियर है, आपको यूनिट्स कितने आते हैं, कन्वर्जन कितने आते हैं, ये आप इवेल्युएट कर सकते हो। लेकिन विदाउट ऑल दिस आप स्ट्रेट अवे न्यूमेरिकल लेके छाप रहे हो, किसी का सॉल्यूशन देखा लिख दिया, वेस्ट ऑफ टाइम है बच्चों। व्हाट इंट्रोस्पेक्शन, व्हाट यू आर अपडेटिंग, इंडिपेंडेंस क्या है उसमें। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉलो द स्टेप्स एंड देन प्रैक्टिस फ्यू न्यूमेरिकल्स, दैट्स इनफ। वो 50 न्यूमेरिकल की भी जरूरत नहीं है, 5 भी सफिशिएंट है बच्चों। 5 न्यूमेरिकल्स आर सफिशिएंट, बट if you are done it with all these steps, you are conceptually cleared, symbols are cleared. So this is about the numerical preparation. Now we are almost addressed everything. हमने क्या क्या एड्रेस किया कि फिजिक्स में कंटेंट क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए, फिर डेरिवेशंस का प्रॉब्लम सॉल्व किया, न्यूमेरिकल्स का
अप्रोच क्या होना चाहिए वो हमने डिस्कस किया। अब हम जाएंगे सेकेंड फेज में। हमने अपना पूरा प्रिपरेशन कर लिया है, वी आर ऑल सेट टू गो। So we have prelim exam given by the classes, which is a very good opportunity for student कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है, लेट्स हैव अ इंट्रोस्पेक्शन, लेट्स सी कि मैंने कितना पढ़ा है, मैं कितना लिख सकता हूं। सो पेपर राइटिंग का कुछ बेसिक स्किल्स होता है, बेसिक स्किल्स। सबसे पहले आई एम जस्ट गिविंग यू बेसिक स्किल्स, ये प्रीलिम में पूरा ट्राई करो सो दैट बोर्ड में एकदम रिफ्रेश होके जाओगे। चेक, पेपर जब अटेम्प्ट करना है उसमें 4 सेशंस है, ABCD। तो अगर आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे बच्चों को सेक्शन सी डिफिकल्ट जाता है, बिकॉज वही बहुत ज्यादा टीज करता है। 3 मार्क के न्यूमेरिकल्स होते हैं, थोड़ा सोचना पड़ता है, लेंथी कैलकुलेशन होता है, अवॉइडेड। सो व्हाट वी कैन सजेस्ट इज दैट इफ आई सेड इफ आपको सेशन सी डिफिकल्ट लग रहा है, A, B, D and then C is a perfect order. Again I say it is not to be followed uniformly without any own review and all. आपका रिव्यू इंपॉर्टेंट है। इफ आपको सेशन सी डिस्टर्ब कर रहा है तो लेट इट बी गो एट द लास्ट लेवल, बिकॉज वो रिव्यू से बात कर रहा हूं मैं, इट इज नॉट टीचर्स रिव्यू, इज अ स्टूडेंट हु फाइंड डिफिकल्ट कि सेशन सी में इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो सेशन डी में बहुत सारे मिस्टेक कर लेते हैं। तो A, B, D, then you can go for C. It's a simple thing which is there. That is one thing you can do. It's all up to your own review. Selection of questions. सेक्शन बी कर रहे हो, आपको 8 क्वेश्चन करने हैं, 7 थ्योरी है और बच्चों 5 न्यूमेरिकल्स है। तो सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मेरे पास इतने क्वेश्चंस है, 7 + 5 12 क्वेश्चंस, और करने तो 8 है, तो 4 एक्स्ट्रा है। तो आई शुड प्रेफर थ्योरी, आई शुड प्रेफर न्यूमेरिकल्स, और आई शुड प्रेफर कॉम्बिनेशन, और आई शुड प्रेफर एज पर द पेपर। ये आपका प्री डिसाइडेड होना चाहिए, प्री डिसाइडेड कि व्हेन आई सी द क्वेश्चंस कि आई शुड नो कि मेरा मैक्सिमम प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, और वो होगा आपका सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस, सेकंड कैटेगरी। थर्ड इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों रिलेटेड है। आपको ये चेक करना है कि थ्योरी एंड न्यूमेरिकल कहां पे टाइम सेव होता है। इफ यू सी इट केयरफुली, आप खुद करके देखना, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो ये जो 2 मार्क के क्वेश्चन है ना, उसके न्यूमेरिकल्स बच्चों वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं। कोशिश करके देखना, 5 में से कम 3 न्यूमेरिकल इतने शॉर्ट होते हैं कि 3 या 4 स्टेप मैक्सिमम विल गिव द आंसर। लॉग भी बहुत सारे केसेस में अवॉइड होता है। सो ये क्वेश्चंस आपका टाइम सेव कर सकते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट जो आपका सेशन वाइज होगा, वो आपको देखना है कि कौन सा सेशन आपको एग्जाम में टाइम के लिए डिस्टर्ब कर रहा है। सो वो आपका एग्जाम का इवेल्युएशन होगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मुझे सेशन बी करना था, मैंने 8 क्वेश्चंस कर लिए। न्यूमेरिकल मेरे पास 5 थे, मैंने 2 ही किए बिकॉज मेरा थ्योरी क्वेश्चन अच्छा था। तो व्हाट आई कैन सजेस्ट, आफ्टर कंप्लीटिंग पेपर, इफ यू हैव टाइम, यू कैन टारगेट दिस वन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल। वो क्यों, उसको मैं अभी एड्रेस करता हूं, बट ओनली इफ योर पेपर इज कंप्लीटेड। कंपल्सरी पेपर होने के बाद, कंपल्सरी पेपर होने के बाद यू कैन गो फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स। वो क्यों, वो आपको मैं आपको हिंट देने वाला हूं, ठीक है। सो दैट पेपर राइटिंग स्किल्स। अब ये देख लो, मैंने एड्रेस किया था एंट्रेंस बैचेस, प्लेन बैचेस, सो दिस इज माय हिंट फॉर दैट। आई गेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एनालाइज करो बच्चों, थिंग्स आर नोन टू यू, आपने बहुत चीजों को एनालाइज ही नहीं किया, बहुत ही इजीली अप्रोच कर सकते हो। चेक दिस, अगर एक स्टूडेंट सिर्फ न्यूमेरिकल करके जा रहा है, न्यूमेरिकल एंट्रेंस का बच्चा है सपोज, उसको न्यूमेरिकल एमसीक्यूज आता है, उसको डेफिनेशन नहीं आता है, नॉट प्रिपेयर टू राइट अ डेफिनेशन, नो डेरिवेशंस, नो डिस्टिंग्विश, नो डायग्राम, सिर्फ उसको न्यूमेरिकल आता है, चेक द मार्क्स। सेक्शन ए उसका एमसीक्यू स्ट्रेंथ है, कर लेगा। वेरी शॉर्ट आंसर 8 है, ऑलमोस्ट ये कर लेगा बिकॉज इट इज अगेन 1 मार्क क्वेश्चन रिलेटेड लाइक एमसीक्यू की तरह होता है, सिर्फ ऑप्शन नहीं होंगे, एक लाइन में लिखना है, तो ऑलमोस्ट 8 मार्क्स। सेक्शन बी का वो 5 न्यूमेरिकल कर लेगा, उसको 10 मार्क मिलेगा। सेक्शन सी का वो 5 न्यूमेरिकल करेगा बिकॉज ही इज वेरी गुड इन न्यूमेरिकल, थ्योरी नहीं कर रहा है। सेक्शन डी में उसके 3 क्वेश्चंस है जिसमें 2-2 मार्क के न्यूमेरिकल्स है, तो यू कैन सी द स्कोर, लुक एट दिस। उसने 70 में से 49 का अटेम्प्ट किया, आई एम नॉट सेइंग 49 मार्क्स मिला, विदाउट doing a single theory. I'm giving you all possibilities because we have all kinds of students,
all kinds of student, but we don't want anyone कि आपने 70 का अटेम्प्ट किया और आपको 10 मार्क्स मिला, 12 मार्क्स मिला, नहीं चाहिए। बिकॉज अपने क्लासेस में जितने भी बच्चे हैं, जिस लेवल पे आपको पढ़ाया गया है, जिस लेवल पे आपने मेहनत किया है, बच्चों 10-12 मार्क्स तो हो ही नहीं सकता। अगर आपको 10, 12, 15 मार्क्स मिलते हैं, दैट मीन्स आपने पढ़ाई नहीं किया, ऐसा नहीं है, आपने कुछ तो मिसकैलकुलेट किया है, कुछ तो मिसकैलकुलेट किया। बिकॉज इतना एफर्ट हर टीचर ने लिया, हर स्टूडेंट ने लिया। आपने सिर्फ एफर्ट मतलब क्लास भी अटेंड किया होगा तो भी आपको 10 मार्क मिलना पॉसिबल नहीं है। तो अंडरस्टैंड दिस कि नहीं, 10-15 मार्क ये क्या है, नहीं हो सकता। एक डिसेंट टोटल चाहिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे डिसेंट टोटल। सो दिस इज द एक्सट्रीम केस गिवन फॉर सम स्टूडेंट कि ओनली न्यूमेरिकल्स कैन स्ट्रेच यू अप टू 49 मार्क्स। सो देयर इज नो नीड टू पैनिक कि मैं एंट्रेंस का था, मैं प्लेन का था, मुझे ये नहीं आया तो 10 मिला। नहीं, ये 10-20 मार्क्स का किधर भी कैलकुलेशन नहीं है। यू डू एंटायर थ्योरी, एंटायर न्यूमेरिकल्स। चेक। पेपर राइटिंग का टिप्स है, ये हम असेसमेंट में फॉलो करते हैं। ओनली वन ऑप्शन, ओनली ऑप्शन एंड आंसर शुड बी रिटन। एमसीक्यूज ये पहले स्टेट में दिखाया था। कुछ बच्चों को इतना गाइड करने के बाद भी एमसीक्यू का पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसके नीचे आंसर लिखते हैं। बच्चों नहीं लिखना है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन एंड आंसर। बट एक मिस्टेक कर रहे हो, ऑप्शन एंड आंसर। अगर आप सिर्फ सपोज ABCD ऑप्शन है, आपने सिर्फ ए लिखा, 1 का आंसर ए, यू विल गेट 0 मार्क्स इवन इफ इट इज करेक्ट। एंड पेनफुली ये हमने लास्ट एग्जाम में किया, करना पड़ा हमें, बिकॉज पेपर रीअसेस होता है। So don't create some stupidities. No statement should be written and answer should be option and the answer. Second thing, ये कोई अपना OMR शीट नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। मैंने 1 का आंसर ए लिखा, लेकिन मुझे क्लिक हो गया कि नहीं मिस्टेक हुआ, 1 का तो सी होना चाहिए। सपोज क्रॉस इट, पुट क्रॉस, राइट अगेन 1, बिकॉज पूरा लाइन खाली है, पूरी लाइन पे लिखा ही क्या है, नीचे जगह क्यों चाहिए, पूरा लाइन में सिर्फ 1A लिखा था। क्रॉस इट, 1 is C, done। वो मैं अभी सेकेंड टाइम कैसे लिखूं, एक बार लिखा नहीं, बट प्रीवियस आंसर शुड बी क्रॉस्ड। आपने 1A भी लिखा, 1B भी लिखा, वैसे तो 1C 1D भी लिख दो, 4 में से एक राइट हम टिक करेंगे। नहीं होता ऐसे, आपको कोई भी एक ऑप्शन रखना है, कैंसिल करो कितनी बार भी, अवॉइड करना, बट इट इज पॉसिबल। एमसीक्यू की बात होगी। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश में 4 पॉइंट नहीं लिखने हैं, कितनी बार बोला है। अगर दो चीजों को डिस्टिंग्विश करना है, यू हैव टू जस्ट राइट मिनिमम 2, दैट्स इट, दैट्स इट। पाइप ओपन एट वन एंड, क्लोज एट वन एंड। ओपन पाइप है, क्लोज पाइप है, डिस्टिंग्विश आया, 2 स्टेप, खत्म, दैट्स इट। वो 4 स्टेप लिखो, 5 लिखो, नहीं चाहिए, 2 लाइन, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, खत्म। समझा? डिस्टिंग्विश पॉइंट्स। डायग्राम, डायग्राम एड्रेस किया था, ड्रॉ करना है, लेबल करना है, मिनिमम 4 लेबल। सिर्फ डायग्राम का क्वेश्चन है, कोई एपरेटस है, कोई भी है, मिनिमम 4 लेबल करना है, याद रखना, मिनिमम 4, दैट्स फाइन। 2 मार्क का न्यूमेरिकल। अब ये क्यों मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा में आप न्यूमेरिकल करो। कोई न्यूमेरिकल रीड करने के बाद जो आपका प्रिपरेशन लेवल है, उससे आपको इतना तो क्लिक होता है कि ये न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट का है। राइट द फॉर्मूला, write the formula, relevant formula. It straight away gives you half a mark. No given, nothing. Given marks नहीं देता। कुछ लोग अभी भी स्टूपिडिटी में होते हैं, सर गिवन लिखा मार्क्स मिलेगा क्या? अरे गिवन मतलब क्वेश्चन लिख रहे हो ना, तो क्वेश्चन को कोई मार्क्स देगा। फॉर्मूला लिखो रेलिवेंट। द क्वेश्चन सेज समथिंग अबाउट अ इंटरनल रेजिस्टेंस, लिख दिया। क्वेश्चन सेज समथिंग अबाउट अ मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज में 2 फॉर्मूला है, दोनों लिख दिए। आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट मीटर ब्रिज है ना, आई नो द फॉर्मूला, मिल गया हाफ मार्क। इसलिए बोला था, एक लाइन में हाफ मार्क मिल गया। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन। मार्क माय वर्ड, विथ कन्वर्जन होना चाहिए। अगर आपने डेटा कन्वर्ट नहीं किया, ऐसे लिख दिया, तो खत्म, सॉल्व। सब्स्टिट्यूशन का मार्क्स 0, आंसर का मार्क्स 0, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। सो दिस इज अबाउट द सब्स्टिट्यूशन। नाउ द लास्ट वन, आंसर विथ यूनिट इज 1 मार्क। अब यहां पे एक प्रिकॉशन लो, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये बहुत बार मिस्टेक हम असेसमेंट में हमेशा देखते हैं। एक बच्चे का आंसर आया, इज आई एम राइटिंग द आंसर, EMF का आंसर लिखना था, तो उसने लिखा 0.02 into 10⁻⁻⁵, ये आंसर था। फिर उसने उसे एडजस्ट किया और लिखा E =
इट्स 2 into 10⁻³ वोल्ट, ऐसा उसने आंसर लिख दिया। अब जिनका मैथमेटिक्स ओके है उनको समझ में आ गया होगा कि इसने एक बहुत ही टेरिबल मिस्टेक किया है, बहुत ही टेरिबल मिस्टेक, कि ये जो डेसिमल शिफ्ट करने का उसने कोशिश किया उसमें बहुत ही सिली मिस्टेक किया। नाउ व्हाट, एज अ टीचर माय प्रॉब्लम, आई हैव टू गिव 1 mark टू द आंसर एंड द यूनिट। सो यू कैन सी दैट जहां पे इसका नंबर करेक्ट है वहां पे यूनिट ही नहीं लिखा इसने, लेकिन बच्चों जहां पे इसका यूनिट करेक्ट है वहां पे नंबर मिसिंग है। दैट मीन्स ये बच्चे ने अननेसेसरीली आधा मार्क वेस्ट कर दिया। तो सजेशन है, अगर ऐसा कुछ करना है, पहली बात तो करना नहीं, बट कंट्रोल नहीं होता, तो आप क्या करो, यहां पे भी यूनिट लिख दो और जो आपको कन्वर्ट करना है वहां पे भी यूनिट लिख दो, सो दैट इन द असेसमेंट जब मैं पेपर चेक कर रहा हूं आई कैन सी ये आंसर राइट है, मैंने मार्क्स दिया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया बट मेरे लिए आंसर है, तो आई विल पुट 1 mark ओवर हियर, आई विल प्रोसीड। So when you have such a problem, write it twice. 2 बार लिख दो if you want to do it. समझा? तो unnecessary mistake नहीं होगा। 3 mark का प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, तो 3 प्रॉपर्टीज स्टेट करना है। डेरिवेशन है तो लिखा है मैंने, हमने अवॉइड करने का सोचा है, बट अप टू यू। डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन 1 mark होता है और मैथमेटिकल स्टेप 2 marks. दिस इज यूजुअल पार्ट। एंड 3 mark का न्यूमेरिकल में 2 फॉर्मूला यूजुअली होता है या बिगर फॉर्मूला होता है, तो बेसिकली वहां पे 1 mark डायग्राम फॉर्मूला में जाएगा, 1 mark फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड आंसर भी यूनिट गोज फॉर 1 mark। ये मैंने आपको मॉडल कॉपी रखा है सो दैट यू कैन ट्रस्ट मी, यू विल ट्राई टू ट्रस्ट मी, कि यहाँ पे मैंने क्या किया, हमें जो सॉल्यूशन आता है बोर्ड से असेस करने के लिए उसका ये कॉपी, ठीक है। इस कॉपी में अगर एक एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे एक डेरिवेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, शायद आपको क्लिक हो जाएगा। जस्ट 1 एग्जांपल कि ये 3 mark का क्वेश्चन में मार्क्स देखो कहा है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया 1 mark डन, एक्सप्लेन किया 1 mark डन। अभी एक्सप्लेन क्या करना है, डायग्राम में क्या क्या कनेक्टेड है, और उसके बाद एक मैथमेटिकल स्टेप है जिसको हाफ अ मार्क लिखा है, और इस मैथमेटिकल स्टेप में यहां पे एक हाफ अ मार्क है। दिस इज नेसेसरी थिंग फॉर द डेरिवेशन। इसके अलावा टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो बहुत सारे स्टेप्स है, बट दीज आर ऑल द स्टेप टू मेक यू अंडरस्टैंड द डेरिवेशन। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, डेरिवेशन जो टेक्स्ट बुक और डाइजेस्ट में दिया होता है, मोस्ट ऑफ देम दे हैव रिटन द स्टेप टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वो नेक्स्ट स्टेप आया कैसे, बट इन बोर्ड एग्जाम इट इज नॉट मैंडेटरी। लुक एट एग्जांपल ऑफ इट, जस्ट लुक एट एग्जांपल ऑफ इट। और एक नीचे एग्जांपल देखोगे वहां पे वो आरएमएस वेलोसिटी का है। सो आई जस्ट टेकन 1 एग्जांपल कि बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे होते हैं। दे डोंट गिव यू पूरा आंसर, हमें नहीं देंगे वो लोग, पूरे आंसर में कहां पे आपको मार्क्स इंपॉर्टेंट है, ओनली दैट मच पार्ट विल बी गिवन। आई होप इट इज क्लियर। चलो थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं। चेक नाउ व्हाट हैपेंड ओवर हियर। हमने एक पैटर्न डिसाइड किया, फिजिक्स में प्रिपरेशन कैसे करना है, टॉपिक को इंटैक्ट कैसे करना है, डेरिवेशंस का प्रॉब्लम्स एलिमिनेटेड, न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू डू इट इन अ प्रॉपर वे, बिकॉज वो थ्योरी का बर्डन कम कर देता है। एक चैप्टर में थ्योरी 6, 7, 8, 10 पेज का हो सकता है, बट बच्चों न्यूमेरिकल 1 पेज का भी नहीं होगा, आई मीन फॉर्मूला। सो फॉर्मूला प्रिपेयर करना बहुत ही इजी है, जस्ट ट्राई टू डू इट फॉर सम चैप्टर्स, आपको समझ में आएगा। तो अब हमने पूरा प्रिपरेशन कर लिया, हमने एग्जाम का अप्रोच समझ लिया कि एग्जाम में किस तरह से हमें अप्रोच करना है, एंड देन ये पूरा करने के बाद फिर एक स्टेज आएगा दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, कि हमने प्रिपरेशन लेवल किया, एग्जाम दिया, हमें हमारा पेपर असेस करके मिल गया। जैसे ही पेपर असेस करके मिल गया, वी आर गोना सी दैट कि उस पेपर में क्या हुआ है। एनालाइजिंग का पॉइंट्स भी मैंने आपको देके रखा है, यू कैन मेक योर ओन पॉइंट्स ऑल्सो। मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किया। डिडक्शन इन द मार्क्स ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन, कि आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए बहुत सारे जो आपको आ रहे थे, लेकिन उसके मार्क्स कम हो गया। 2 mark का क्वेश्चन था, आपको 1.5 ही प्रोवाइड किया। 3 mark का क्वेश्चन था, 1 mark ही मिला है। डायग्राम ड्रॉ किया, 2 mark का था, 1 ही मार्क दिया। तो ये सबसे पहले एनालाइज करोगे कि द क्वेश्चंस व्हिच यू आर अटेम्प्टेड आपको आ रहे थे और उसमें मार्क्स कम हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसका रिव्यू लोगे आप पहले खुद से वेरीफाई करोगे कि इज इट मैंने कुछ कम लिखा है या मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ लिखने में। अगर जस्टिफाइड नहीं है तो यू हैव टू कंसल्ट द टीचर एंड शो देम कि सर यहाँ पे डिडक्शन इन मार्क्स आया है, क्या रीजन है, कैसे इंप्रूव करना है। क्लियर?
So that is the first point to be taken. Reduction in the marks जो आपको टैकल करना है. Second, mistake in solving numericals. जैसे हमने एड्रेस किया, numericals are not complicated. Don't give them a hype कि numericals मतलब बहुत complicated. नहीं, कुछ नहीं है. Approach proper रखो, कुछ problem नहीं है. यहाँ पे mistakes in solving numericals देखो. जो numericals आपने attempt किए बहुत बार, जैसे अभी एक्सप्लेन किया, कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मिस्टेक होता है, फॉर्मूला में रूट था स्क्वायर हो गया, प्लस था माइनस हो गया, कैलकुलेशन में मिस्टेक्स हो गया, ये सारा चीज है. उसमें एक चीज थोड़ा सा मेरा रह गया कैलकुलेशन का, एक मिसकॉन्सेप्शन बहुत बच्चों ने रखा है, लॉग बुक. क्या है वो? बोर्ड में कैलकुलेशन करने के लिए लॉग बुक कंपल्सरी नहीं है. गेट माय वर्ड्स क्लियर. There is no rule that you have to calculate by the logbook. Understand the perspective of it. Logbook इसलिए दिया बच्चों को so that they can easily do the complicated calculation. जैसे एग्जांपल 4 डिजिट का डिवीजन है, नॉर्मली करना बहुत डिफिकल्ट है. लॉग लो, डिवाइड करो, आंसर आ गया. That means logbooks are introduced to help you. So it is very obvious आपको हेल्प नहीं लेना है तो मत लो, just solve it. But एक चीज फॉलो करना, this was missed point, तो मैं अभी एड्रेस कर रहा हूँ. आप एक 2 मार्क का न्यूमेरिकल कर रहे हो, ऑब्वियसली सेक्शन बी का है. सपोज 9th क्वेश्चन आप कर रहे हो, तो जैसे ही क्वेश्चन लिखा आपने यहाँ पे गिवन लिखा, आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो. यूजुअल मेंटेलिटी, कुछ बच्चे अभी भी स्कूल में ही है कि जब मुझे यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करना है तो लॉग नहीं आ रहा है, तो बच्चा क्या करता है, लास्ट पेज पे जाता है. रेगुलर में तो जाता ही है, बोर्ड एग्जाम में भी सेम मिस्टेक करता है. सो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वी हैव एम्पल ऑफ स्पेस ओवर हियर. वो कैलकुलेशन यहां करो और फिर आंसर को यहां पे ट्रांसफर कर लो. अभी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा नया, गुड क्वेश्चन. दैट approximations are not allowed in the board exam. These are numericals. जो लोग जेई एग्जाम दे रहे हैं उनको अभी डेमो मिल गया होगा कि जेई में भी एमसीक्यूज के अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चंस ऐड किया. 10 क्वेश्चंस दे आर गोना ऐड. क्यों? बिकॉज अप्रोक्सीमेशन से क्या होता है, आंसर गेस किया जाता है, कैलकुलेशन का स्किल नहीं है. तो बोर्ड एग्जाम इज प्योरली बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल बेसिस अपार्ट फ्रॉम दोस एमसीक्यूज. तो इन न्यूमेरिकल्स में अप्रोक्सीमेशंस अलाउड नहीं है. अगर एग्जाम्पल मैंने जैसे बताया 3.152 ये मेरा आंसर आया है और आपने लिखा 3.2, ऐसा आंसर लिखा, तो अगर ये आंसर राइट है, इसे रॉन्ग दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में. अप्रोक्सीमेशन आर नॉट अलाउड. एंट्रेंस के बच्चे यूज्ड टू होते हैं कि 3.142 है, 3 ले लिया, जी 9.8 है, 10 ले लिया. नो बच्चों, नहीं कर सकते. और क्यों नहीं करना है? बोर्ड एग्जाम हैज गिवन यू सफिशिएंट टाइम. ठीक है, सफिशिएंट टाइम दिया है, सफिशिएंट टाइम दिया है कि अगर आप एक एमसीक्यू का टाइम देखोगे, 1 मार्क का टाइम देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली कर लो, आपको 3 मिनट्स मिलेगा. वेयर एज सेम टाइम एंट्रेंस में जाओगे तो कितना कम है. इसलिए अप्रोक्सीमेशंस आर नॉट अलाउड. एक्सट्रीम केस में लास्ट डिजिट में अगर अप्रोक्सीमेशन करना है तो चलेगा. एक्सट्रीम केस में जहां पे अब डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं है तो मेरे सामने एक ही ऑप्शन है कि अप्रोक्सीमेट कर लूं, तो वहां पे चलेगा, लेकिन नॉट गाइडेड अप्रोक्सीमेशंस आर नॉट अलाउड. क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट कि कैलकुलेशन सेम पेज पे रखना है और यहाँ पे रफ कैलकुलेशन कर लो, आंसर ट्रांसफर करो. ऐसी बोर्ड एग्जाम को समझो कि अगर मैं कैलकुलेशन बैक पेज पे जाता हूं, वापस आता हूं, इधर टर्न उधर टर्न और बैक पेज पूरा भरा पड़ा रहता है बहुत सारे कैलकुलेशन से. बहुत बार ऐसा नोटिस होता है कि वो ट्रांसफर करने में भी मिस्टेक होता है, या आपने भी नोटिस किया होगा, किया कुछ और ही कैलकुलेट था लेकिन पेज ऐसा करके ऐसे करने में नंबर चेंज कर दिया. क्यों, वो आपको ही पता. सो always suggested put a line, sufficient space होता है पेज पे, put a line over here, do the calculation and write it. कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा हमारा रफ वर्क है, ये मैंने ऐसे कुछ लिखना नहीं है. This line is the clear indication something is sidelined by default है. वो अपने पास होते हैं, आपने नोटिस किया होगा ऑलमोस्ट एवरी लॉग बुक, उसके स्टार्टिंग 2-3 पेज देख लो, 10 पेज देख लो, आर दे कंटेनिंग फॉर्मूला एंड ऑल द शॉर्टकट्स ऑफ द फॉर्मूला एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला? यस, ऑल द मार्केट अवेलेबल बुक. इसलिए वो आपको बोर्ड एग्जाम में अलाउड नहीं है. बोर्ड एग्जाम अपना बोर्ड का एक खुद का लॉग बुक है जिसमें सिर्फ लॉग
एंटीलॉग, साइन, कोसाइन, रूट, टैन, ये सारे फंक्शन जो नेसेसरी है, इवन रूट टेबल भी उसमें है, वो आपको प्रोवाइड करेगा. इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू थ्रू आउट द एग्जामिनेशन. सो आपको लॉग बुक will be provided by the board in the during the board examination. खुद का कैरी नहीं करना है, किया तो भी अलाउ नहीं करेंगे. टाइम मैनेजमेंट, आपको ये सबसे बड़ा इंट्रोस्पेक्शन आएगा कि टाइम मैनेजमेंट में क्या हुआ. एग्जाम देने के बाद ही मिलेगा वो कि आपका कितना पेपर अटेम्प्ट हुआ, कितने पेपर में आपको स्पीड अप करना पड़ा, कितने आंसर्स आ रहे थे बट टाइम की वजह से कम पड़ गए. बिकॉज ये सारे एरर्स हमें प्रीलिम्स में ही अवॉइड करने हैं. वी डोंट वांट एनी सच एरर फॉर अवर बोर्ड एग्जाम कि बोर्ड एग्जाम में मेरा टाइम ही कम पड़ा, वो बोर्ड एग्जाम में मेरा ये सिली मिस्टेक हो. यार नथिंग वी वांट. वी हैव इनफ प्रीलिम एग्जाम. सर ने बहुत अच्छा एफर्ट लेके प्रीलिम एग्जाम अरेंज किए है, उसको पॉजिटिवली लो, उसको समझो कि हमें बोर्ड में कोई भी एरर नहीं रखना है. इट शुड बी क्लीन एंड क्लियर एंड अप्रोच शुड बी पॉजिटिव फॉर द बोर्ड. तो प्रीलिम में सारा इंट्रोस्पेक्शन कर लो. इवेल्युएशन ऑफ प्रिपरेशन मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा आपका. When you say so called, मेरा पढ़ के हो गया, ये कॉमन स्टेटमेंट है. तो प्रीलिम में आपको एक इवेल्युएशन मिलेगा. अगर आप कहते हो मैंने रोटेशनल डायनामिक्स पूरा पढ़ लिया, लेकिन आपका एग्जाम में रोटेशनल डायनामिक्स का स्कोर 0 है, वो चाहे सिली मिस्टेक्स हुआ, चाहे वो याद नहीं आया, या व्हाटएवर इज द रीजन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इफ आई डन रोटेशनल डायनामिक्स, फिर भी उसका मुझे 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं करने को आया, दैट मीन्स आई नीड टू इम्प्रोवाइज. तो आपका इवैल्यूएशन टॉपिक वाइज भी होना चाहिए एवरी प्रीलिम, सो दैट इसके बाद आप जो नेक्स्ट प्रीलिम होगा उसमें उसे एलिमिनेट करोगे. सो दिस वाज द सेशन इन व्हिच आई ट्राई टू गाइड यू व्हाट आर द थिंग्स. मैंने कंटेंट को टच करना अवॉइड किया बिकॉज इट वाज जस्ट अ गाइडिंग लेक्चर एंड नॉट अ रिवीजन लेक्चर. मैंने जितने भी एग्जांपल्स लिए of the content, it was just to prove my point and to make you understand ki what are the parameters. So I need to conclude the session with respect to board question papers. See, nowadays there are some students who are asking previous year board questions. ठीक है, so एक चीज क्लियर कर लो, जिस पैटर्न को, जिस सिलेबस को फॉलो कर रहे हो, तो 2 साल पहले वो पैटर्न भी नहीं था और वो सिलेबस भी नहीं था, तो इट इज नॉट बेनिफिटेड. आई होप यू अंडरस्टूड दैट. 2 years पहले, 3 years पहले के बोर्ड पेपर्स देखोगे तो टोटली डिफरेंट पैटर्न था, कंटेंट भी डिफरेंट था, तो वो आपको इतना बेनिफिट नहीं करेगा. क्लियर? सो प्लीज अवॉइड दैट कि 2-3 साल पहले का बोर्ड पेपर्स आपको हेल्प नहीं करेगा. सी, न्यूमेरिकल्स है उसमें और जो कंटेंट के क्वेश्चंस है, बिकॉज कंटेंट भी चेंज हो चुका है. यू मस्ट हैव सीन दैट कंटेंट भी चेंज हुआ है. लिमिटेशन ऑफ रफ पेज, नथिंग. सी, बोर्ड एग्जाम में there is no limitation about using a paper. आप 1-2 नहीं 10 सप्लीमेंट भी ले सकते हो. You can easily take. So लास्ट के 2 पेज अगर आपने रफ वर्क, सो कॉल्ड डायग्राम रिकलेक्ट करना है, फॉर्मूला रिकलेक्ट करना है, उसके लिए यूज किया, नो प्रॉब्लम. इफ यू वांट टू कीप योर प्रेजेंटेशन इंटैक्ट and you want to just do some recollecting things and all, या कुछ लोग जाने के बाद इमीडिएटली कुछ फॉर्मूला लिख के रख देते हैं लास्ट पेज पे जाके, बिकॉज फ्रेश होता है. ऑल दिस ट्रिक्स यू कैन डू, बट दैट इज ऑन द लास्ट पेज एंड यू कैन यूज 2, 3, 4, 5 पेजेस. दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. नो रूल, नथिंग लाइक दैट. यू कैन यूज दैट. 2 मार्क का न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला लिखा, हाफ मार्क. सब्स्टिट्यूशन किया बच्चों, हाफ अ मार्क. उसके बाद आंसर के लिए 1 मार्क है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेशन के लिए मार्क्स नहीं है. तो अगर आपने सब्स्टिट्यूशन के बाद 3 स्टेप करके छोड़ दिया, 4 स्टेप करके छोड़ दिया, या डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन के बाद छोड़ दिया, उन सब का मार्क्स 0 ही है. बिकॉज आंसर में सिर्फ 1 मार्क है, स्टेप्स को मार्क्स ही नहीं है. एंड इसीलिए मैंने गाइड किया कि जब कोई कैलकुलेशन का सब्स्टिट्यूशन करोगे, टेक अ कॉल, सिंपली टेक अ कॉल दैट दिस कैलकुलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, लीव इट. लास्ट में अगर टाइम बचता है, यू कैन गो फॉर इट. लेकिन अगर, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका E1/E2 का एक न्यूमेरिकल देता हूं. E1/E2 का न्यूमेरिकल है बच्चों, जिसमें मैं पर्पसली कॉम्प्लिकेट करता हूं. एक नंबर है 1.850 और दूसरा नंबर है 1.325. अब जब मुझे इनको डिवाइड करना है लाइक दिस, मैंने E1/E2 L1/L2 बच्चों लिख दिया. मेरा फॉर्मूला का हाफ मार्क, सब्स्टिट्यूशन का हाफ मार्क हो गया. Now you can see that इसे डिवाइड करना is not that simple. So I have to take a call, just leave it like this. मेरा 1 मार्क हो गया है, 1 मार्क चला गया.
end of the paper I have a time, I can go for the calculation, because search calculation log से करोगे तो ही वो immediately 15-25 सेकंड में होगा. डिवाइड करोगे 2-2 का टेबल से तो बच्चों it will be 2-3 steps, but answer will be difficult. I hope you understand that. So if you're leaving the calculation, 2 स्टेप करके छोड़ो या 3 स्टेप करके छोड़ो, it won't have any marks. I hope it is sorted. टेक्स्ट बुक के बाहर, जैसे मैंने आपको गाइड किया, टेक्स्ट बुक के बाहर के क्वेश्चंस नहीं आ सकते. इसका मतलब क्या है? कंटेंट समझो. आपको जो गाइड किया मैंने कि चैप्टर का लिस्टिंग कर दो, चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स है, जस्ट प्रिपेयर द टॉपिक्स, और उस टॉपिक के ऊपर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मॉडल क्वेश्चंस, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, आपका टेक्स्ट बुक, आपका डाइजेस्ट, इसे यूज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है. जैसे एग्जांपल, आपने लेंस लॉ स्टडी किया, ओके, आपने लेंस लॉ प्रिपेयर किया, सो देयर कैन बी अ 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चन पॉसिबल ऑन द लेंस लॉ. सो योर एम इज टू अंडरस्टैंड कि लेंस लॉ आने के बाद एज पर द क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है. जैसे एग्जांपल, स्टेटमेंट ऑफ लेंस लॉ पूछा, you know how much to write, state the formula for the Lenz law, state the significance of negative sign in the Lenz law, which conservation is there for the Lenz law, prove the Lenz law, obtain the expression for induced EMF in a linear motion. तो ये सारे related questions हो गए. So don't stick to the question, content clear कर लो, and then when you see a question, write a suitable answer. कुछ problem नहीं आएगा. और न्यूमेरिकल्स में भी सेम, नॉट नेसेसरी, डोंट हैव अ मिसकॉन्सेप्शन कि टेक्स्ट बुक में से ही न्यूमेरिकल आएगा. फॉर्मूला चैप्टर के अंदर का होगा, तो अगर वो वैल्यू चेंज करते हैं, हाउ डज इट मैटर? सी, कुछ क्वेश्चंस इररिलेवेंट क्यों होते हैं? टेक्स्ट बुक में से भी न्यूमेरिकल आया, तो टेक्स्ट बुक में कम से कम पर चैप्टर देयर आर 10-20 न्यूमेरिकल्स मिनिमम. 20 न्यूमेरिकल्स सॉल्व अनसॉल्व पकड़ के 20 हो गए, 16 चैप्टर्स है. T20 न्यूमेरिकल्स 300 पकड़ लो, 300 में से भी 10 आया, आर यू गोना रिकलेक्ट कि हाँ ये मैंने सॉल्व किया था? नहीं, नथिंग लाइक दैट. इट्स एन एप्लीकेशन. नंबर चेंज करे, फॉर्मेट चेंज करे, हाउ डज इट मैटर? आपने अपना फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर किया, करके देखो, मालूम पड़ेगा. एनी चेंज इन नंबर, एनी चेंज इन द फॉर्मूला डज नॉट मैटर्स टू यू. दे कैन ट्विस्ट द फॉर्मूला, ट्विस्ट द नंबर्स, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. चलो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू.